morning, students. I welcome you all with a very good thought, that is, no matter how good or bad your life is, wake up each morning and be thankful that you still have one. Okay, so in our today's class, this is the GK class. So in our GK class, our second chapter is First Indian Women too. So in India, in India, women have been pioneers in various fields. In previous ancient India, means in the olden days, we can see that women are only doing household works or cooking only. But nowadays, women are coming out of that world, inner world, and they are making a very notable position. Uh, they are achieving some fame in their own field, whatever they liked. So let's discuss in our today's class. Firstly, I'm telling you that we will discuss about 8 women's, those are who are uh, pioneered in her own field. Firstly, मतलब पहली औरत, उन्होंने अपने जगह पर अपने एक हुनर के साथ साथ एक जगह बनाए और अलग अलग क्षेत्र में पहली जगह बनाए एक महिला होने के नाते. सो आइए देखते हैं पहली औरत कौन है. विजय लक्ष्मी पंडित. Vijay Lakshmi Pandit was born on 18th August 1900, and she was died on 1st December 1990. She was an Indian diplomat and politician who was elected as the first female president of the United Nations General Assembly. Okay, so hailing from a prominent political family, her brother Jawaharlal Nehru was the first Prime Minister of independent India. So ये जवाहरलाल नेहरू के बहन थे. तो विजय लक्ष्मी पंडित, उन्होंने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो है उनका सर्वप्रथम महिला प्रेसिडेंट बनी थी. ओके, सो and Pandit was sent to London as India's most important diplomat after serving as Nehru's envoy to the Soviet Union, the United States, and the United Nations. So after Nehru, she went to the London as diplomat. Diplomat होके उन्होंने लंदन में गई थी और जाके her time in London offers insights into the wider context of चेंजेस इन इंडो ब्रिटिश रिलेशनशिप्स. उन्होंने इंडो ब्रिटिश का जो एक रिश्ता था, मतलब वो रिश्ते को उन्होंने चेंज किया. ओके, अरुंधति रॉय. अरुंधति रॉय, सुजाना अरुंधति रॉय, शी वॉज बोर्न ऑन 24th November 1961. Is an Indian author based known for her novel The Gold of Small Things 1997, which won the first Indian Women Booker Prize for Fiction in 1997 and became the best-selling book by a non-expatriate Indian author. Okay, अरुंधति रॉय, जिनका जन्म हुआ था 24 नवंबर 1961 साल. इन्होंने एक भारतीय लेखिका है, बहुत फेमस लेखिका है भारत की, जिनका नॉवेल आए थे द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, जो कि ना 1997 साल में पब्लिश हुई थी ये नॉवेल. और ये इतना ही फेमस हो चुकी थी, इतना बिक चुके थे उस टाइम पे ये नॉवेल. तो इसके वजह से इसका एक मतलब नाम बहुत ऊंचाई शिखर तक पहुंच गए. Okay, so she is also a political activist involved in human rights and environmental causes. मतलब she is not only the writer या author,
उन्होंने सिर्फ लेखिका नहीं थी, बल्कि साथ साथ उन्होंने एक सोशल एक्टिविस्ट भी थी, जिन्होंने एनवायरनमेंट के ऊपर बहुत काम किया, ह्यूमन राइट्स के ऊपर भी बहुत सारे काम की. Roy began writing her first publication of the novel The God of Small Things in 1992, completing it in 1996. देखिए 5 साल लग चुके थे, 1992 से स्टार्ट करके ये किताब 1996 तक लिखी उन्होंने बैठे बैठे. द पब्लिकेशन ऑफ द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स कैटापुलेटेड रॉय टू इंटरनेशनल फेम. ये बुक का जो पब्लिकेशन थे, उन्होंने अरुंधति रॉय को एक इंटरनेशनल फेम ला के दी. इट रिसीव्ड द 1997 बुकर प्राइज फॉर फिक्शन एंड वाज लिस्टेड एज वन ऑफ द न्यू यॉर्क टाइम्स नोटेबल बुक्स ऑफ द ईयर. तो उस टाइम के द न्यू यॉर्क टाइम्स करके एक बुक्स थे, नोटेबल बुक्स थे, जिनमें पूरे साल का, जैसे मोनोरमा ईयर बुक्स वगैरह होता है ना अभी इंडिया के लिए, तो वैसा ही न्यूयॉर्क के लिए वैसा बुक्स था. तो उन्होंने उस बुक में उनका नाम पब्लिश हुई थी, उनका नाम लिखा गया था कि फर्स्ट फीमेल इंडियन बुकर प्राइज विनर करके 1997 में. जस्टिस फातिमा बीवी, एम फातिमा बीवी, शी वॉज बॉर्न ऑन 30th April 1927. Is a former judge of the Supreme Court of India. जस्टिस फातिमा बीवी, एम फातिमा बीवी, जिनका जन्म 30 अप्रैल 1927 साल को हुआ था, शी इज़ अ फॉर्मर जज. उन्होंने बहुत पुराने जज थे सुप्रीम कोर्ट की. शी वॉज अपॉइंटेड टू द एपेक्स कोर्ट इन 1989. एपेक्स कोर्ट लोअर कोर्ट होता है, ठीक है, सिंपली पता कर लो, समझ लो कि लोअर कोर्ट है एपेक्स कोर्ट. लोअर कोर्ट में से उनका अपॉइंटमेंट हुई थी. उसके बाद उन्होंने, एक्सक्यूज मी, देयर इज सम टेक्निकल इशू, ओके, तो उसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जज बन गई और पहला महिला जज, ओके. और साथ के साथ उन्होंने मुस्लिम कम्युनिटी के तौर से भी पहला हायर जुडिशियरी बॉडी संभालने वाली कोई बनी. जैसे मुस्लिम कम्युनिटी में क्या होती थी पहले के ज़माने में कि औरत लोग को पर्दानशीन करके रखा जाता था, तो मतलब पर्दे के आड़ाल में. तो वो पर्दा उठा के उन्होंने पर्दे के बाहर आके अपना जगह बनाई और अपना हुनर के साथ साथ और अपना नाम भी कमाए, एक जज हुआ इतना पढ़ी लिखी करके. On her retirement from the court, she served as a member of the National Human Rights Commission and later she was the governor of the Indian state of Tamil Nadu from 1997 to 2001. ओके, तो उनका रिटायरमेंट होने के बाद हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से, उन्होंने नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का एक्टिव मेंबर रह चुकी थी. और साथ के साथ उन्होंने 1997 से 2001 साल तक भारतीय स्टेट तमिलनाडु की गवर्नर रह चुकी थी. आवर नेक्स्ट फीमेल एक्टिविस्ट इज मिस सी बी मुथम्मा. सी बी का फुल फॉर्म है चोनीरा बेलप्पा मुथम्मा. शी वॉज बॉर्न ऑन 24th January 1924 and she was died on 14th October 2009. She was the first woman to clear the Indian civil service exams, जो अभी IAS एग्ज़ाम कहते हैं. She was also the first woman to join the Indian Foreign Service. She was the first Indian woman also as a diplomat as well. Later, she became the first Indian woman ambassador or high commissioner also. She is remembered for her successful successful ensured for gender equality in the Indian civil services. तो इंडियन सिविल सर्विसेज में पहले क्या होता था कि मेल लोग जो है, मर्द लोग ही ज़्यादातर पास होते थे, एग्ज़ाम क्लियर कर पाते थे. तो
ये एक महिला होने के नाते पहली महिला जिन्होंने एग्ज़ाम क्लियर की, और करने के बाद ये समाज के लोगों को ये एक चीज़ दर्शाए कि ऑल मेन एंड फीमेल और ऑल आर इक्वल, women's are not lesser than the men. Okay. Now Premlata Agarwal. Premlata Agarwal, she was born on 1963. She is the first Indian woman to scale the seven summits. The summits means the seven highest continental peaks of the world. She is the she scaled the seven highest continental peaks of the world. Uh, okay, she was awarded the Padma Shri by the Government of India in the year 2013, and Tenzing Norgay National Adventure Award in 2017 for her achievements in the field of mountaineering. तो इनका काम जो है ये पढ़ के समझ में ऑलरेडी आ रहा है कि ये कौन से फील्ड से बिलोंग करती थी. शी इज़ ए माउंटेनियर. तो ये माउंटेनियर होने के नाते क्या की थी, जो भारत मतलब पूरे दुनिया के जो 7 महादेश है, 7 महादेश के जितने जितने हाईएस्ट पीक है, वो हाईएस्ट पीक को उन्होंने स्केलिंग की थी, मतलब परिणाम की थी. और ये एक अच्छा काम करने की वजह से उनको 2013 साल में उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तरफ से उनको पद्मश्री अवार्ड मिली, और 2017 साल में उनको तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड भी मिली. On 20th May 2011, she became the oldest Indian woman to have scaled the world's tallest peak, Mount Everest. एक्चुअली क्या हुआ था, 2011 के बाद और भी कोई औरत और भी कोई ना कोई आके माउंट एवरेस्ट को परिणाम की थी, उनका हाइट वगैरह या फिर डायमीटर वगैरह जितना भी है. तो ये जो हाइट उनका जो स्केलिंग किया, तो उन्होंने पहला की थी, उसके बाद ये. तो शी इज़ बिकेम द ओल्डेस्ट राइट नाउ. She also became the first person from Jharkhand state to scale Mount Everest. तो she belongs from the Jharkhand state. That means तो झारखंड स्टेट से उन्होंने पहला महिला है जो जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को स्केलिंग की. नाउ पद्मावती बंदोपाध्याय. एयर मार्शल पद्मावती बंदोपाध्याय, she was born on 4th November 1944. Is a former air officer in the Indian Air Force. She was the first woman to be promoted to the rank of Air Marshal in the Indian Air Force. तो एयर मार्शल पद्मावती बंदोपाध्याय, उन्होंने उनका जन्म हुआ था 1944 में 4th नवंबर में. उन्होंने एक एयर ऑफिसर रह चुकी इन द इंडियन एयर फोर्स की. शी वॉज द फर्स्ट वुमेन टू बी प्रोमोटेड टू द रैंक. उन्होंने पहला महिला जिन्होंने इस रैंक पे जिन्होंने एयर मार्शल पोस्ट पर एयर मार्शल जो रैंक होता है, उन्होंने पहला महिला होके प्रोमोट हुई थी एयर फोर्स के तौर से. She is the second woman in the Indian Armed Forces to be promoted to a 3-star rank after Lieutenant General Punita Arora. Lieutenant General Punita Arora, उनके बाद ये पद्मावती बंदोपाध्याय सेकेंड वुमेन थी जिनको आर्म्ड फोर्स के तरफ से, आई मीन आर्मी के तरफ से उनको 3 स्टार, यहाँ पे जो 3 स्टार होती है ना जब यूनिफॉर्म पहनते हैं कंधे पर, तो यहाँ पे जो 3 स्टार जो बैच है, 3 स्टार जो उनका प्रमोशन होता है एक उनको, तो वो आर्मी के तरफ से उनको दिया गया था. नाउ लेफ्टिनेंट पुनीता अरोरा. लेफ्टिनेंट जनरल सर्जन वाइस एडमिरल पुनीता अरोरा इज a former flag officer of the Indian Navy and the Indian Army.
ये दोनों क्षेत्र में इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी में पुनीता अरोड़ा, लेफ्टिनेंट पुनीता अरोड़ा एक अच्छा जगह बनाई। और अरोड़ा वॉज द फर्स्ट वुमेन इन द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस टू बी प्रोमोटेड टू ए 3 स्टार रैंक। तो उन्होंने पहला महिला जिन्होंने 3 स्टार का एक 3 स्टार रैंक मिल के प्रोमोट हुई थी इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के तरफ से। शी हेल्ड द रैंक्स। क्यों बार बार ये प्रॉब्लम हो रही है मुझे? आई एम सो सॉरी बच्चे। हाँ, शी हेल्ड द रैंक्स ऑफ लेफ्टिनेंट जनरल इन द इंडियन आर्मी एंड सर्जन वाइस एडमिरल इन द इंडियन नेवी। इन्होंने इंडियन नेवी का सर्जन वाइस एडमिरल अपॉइंटेड हुई थी और इंडियन नेवी का लेफ्टिनेंट जनरल बन चुकी थी। नाउ Sarojini Naidu. Sarojini Naidu was an Indian political activist and the poet. She was an important figure in India's struggle for independence from colonial rule. बहुत पुराने सालों से ही सरोजिनी नायडू एक भारत के एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट रह चुकी थी, जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता लाने के लिए बहुत काम की थी और स्ट्रगल की थी। नायडू's work as a poet earned her the sobriquet Nightingale of India by महात्मा गांधी। उन्होंने लिखती भी थी। सरोजिनी नायडू एक अच्छा पोएट भी थी, कविता वगैरह काफ़ी सारी लिखी, जिनके वजह से उनको महात्मा गांधी ने नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहते थे। और शी वॉज कॉल्ड भारत कोकिला बाय रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर उनको भारत कोकिला नाम पे आखा दिया गया था। शी वॉज अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश, मेकिंग हर इंडियाज फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ इन द प्री इंडिपेंडेंट एरा। तो उन्होंने पहला महिला गवर्नर होकर अपॉइंट हुई थी उत्तर प्रदेश स्टेट की, बल्कि सारे स्टेट्स में से ही शी वॉज द फर्स्ट वुमेन गवर्नर प्री इंडिपेंडेंस एरा की, मतलब भारत स्वतंत्रता होने से पहले की। Now students, all we have 8 women, we have discussed about all 8 women. I can see in your book there is page number 5. पेज नंबर 5 का यहाँ पे जो ऑप्शंस दिया गया है नीचे हेल्प बॉक्स में, ये आपको यहाँ पे जो 1 2 3 4 करके जो नंबर्स है, यहाँ पे आपको उनके फ़ोटोज़ के नीचे आपको डालना है, लिखना है और उनका नाम अप्रोप्रिएट जगह पर। एक चीज़ यहाँ पे बताना है, 6 नंबर पे फर्स्ट वुमेन लेफ्टिनेंट जनरल का फ़ोटो दिया गया है। देखिए, जस्टिस फ़ातिमा बीबी के बाजू में इनका नाम एक्चुअली शी इज़ नॉट द पुनीता अरोड़ा। इनका पिक्चर पुनीता अरोड़ा का नहीं है, यहाँ पे गलत इन्फॉर्मेशन बुक में दिया गया है। आई सर्च ऑन द इंटरनेट अबाउट पुनीता अरोड़ा ऑल्सो and her also, and then I came to know that the picture which was given in the book, that is the picture of Major General Mukti Sharma. She was the commandant. ओके, तो मुक्ति शर्मा का पिक्चर यहाँ पे पोस्ट दिया गया है, लेकिन जो पुनीता अरोड़ा जो फर्स्ट वुमेन लेफ्टिनेंट जनरल है, उनका पिक्चर मैंने स्लाइड पे दिया, एक बार देख लो। ओके, सो यू हैव टू लर्न ऑल द स्लाइड्स प्रॉपरली एंड सी द पिक्चर्स। देखो, ये स्लाइड में जितने सारे इन्फॉर्मेशंस मैंने तुम लोगों से शेयर की, जो इन्फॉर्मेशंस बुक में नहीं मिला आपको, बुक में एक एक लाइन का ही करके दिया है मैंने, ये आप लोगों के लिए सिर्फ छानबीन करके अच्छे एक
नोट्स बना के प्रिपेयर करके मैं आपको दिया, आपके साथ शेयर किया, आपको इन लोग औरतों के बारे में थोड़ा सा पता करने के लिए। आपको ये जो सारे इन्फॉर्मेशन से स्लाइड्स के साथ साथ ये अच्छे से आपको पढ़ाई करनी है। जब जीके का टेस्ट होगा, जीके का एग्ज़ाम होगा, उसमें ये पूछा जा सकता है। सो डोंट इग्नोर ऑल द स्लाइड्स, okay, and all the informations which is given in the slides. Okay, so your homework is to be go to Google and search those famous female personalities name जिनका अभी हमने डिस्कस नहीं की। ये 8 औरत को छोड़ के बाकी और भी कोई औरत अगर होगी, अब बहुत सारे हैं जिन्होंने अपने फील्ड पे, एक अलग फील्ड में पहला जगह रखी थी, फर्स्ट वुमेन होके, तो उनका एक एक नाम कौन से फील्ड में अपना जगह बनाई, ये आपको एक नोटबुक में या एक पेज में लिखना है। ठीक है, एक पेज का बीच में से डिवाइड करना, बीच में से डिवाइड करने के बाद लेफ़्ट साइड में उनका नेम लिखना, पर्सनैलिटीज़ नेम, एंड राइट साइड में लिखना कि फील्ड्स या विच फील्ड्स शी वाज गेटिंग फेमस। ओके, ये काम करना। और पेज नंबर 5 का ये मैंने बोल दिया अभी, जो ये फ़ोटोज़ के नीचे इनका नेम्स लिखना है अप्रोप्रिएट जगह पे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर योर टुडेज़ क्लास। ओके, सो आई एम सो सॉरी फॉर दैट, आई अपोलोजाइज ऑल्सो फॉर लेट अपलोडिंग। एक्चुअली मेरे मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, अभी भी प्रॉब्लम चल रही है। आप लोगों ने ये वीडियो लेक्चर सुनते समय भी देख पाएंगे कि थोड़ा कुछ प्रॉब्लम हो रहा है मेरे मोबाइल में, ऐप रिलेटेड कुछ, जिसकी वजह से अभी रिकॉर्डिंग ठीक से नहीं हो पा रहा था। देयर वाज अ प्रॉब्लम, सो सॉरी फॉर द लेट अपलोड ऑफ द वीडियो, but I'm trying to give you the best after searching all the extra informations from internet also, and uh, from collection in different sources also. So please try to read all the informations and uh, fill the books and do the homeworks properly. Okay बच्चे, so thank you so much, thank you, keep smiling and keep healthy.